Hello students, today I am going to discuss on the most important topic in Indian logic, that is Hettabhash. In Indian logic, a fallacy is called Hettabhash. It means that the middle term appears to be a reason but not a valid reason. In Indian logic, all fallacies are material fallacies. In our previous class, that means Indian logic part 1, we have mentioned the 5 characteristics of a valid middle term. When these are violated, we have fallacies. And 5 kinds of fallacies are recognized by Nyaya philosophy. Hetu, Hettabhash, Hetu plus Abhash. Hetu means reason, Abhash means appears or claims. This is called Hettabhash. But first of all, we need to understand the purpose of inference or constitutes of inference. There are 5 constituents of inference mentioned by Maharshi Gautam. He was the founder of Nyaya philosophy. These are Pratigya, Hetu, Udharan, Upanay, and Nigaman. Pratigya, Hetu, Udharan, Upanay, and Nigaman. For example, the hill has fire. This is the Pratigya. Because has smoke, Hetu. But river has smoke, has fire. For example, an oven. Udaharan. This hill has smoke, which is invariably associated with fire, Upanay. Therefore, this hill has fire, Nigaman. Pratigya, actually my statement, and Hetu means reason. And Udharan is example. Upanay is analogy. And Nigaman is our conclusion. So, Pratigya, Hetu, Udharan, Upanay, Nigaman is the constituents of inference. But जब कोई inference में वो जो हेतु और वो जो मिडिल टर्म उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो रूल्स है, वो अगर वायलेट हो जाए तो वहां पर हितभाष का क्रिएशन होता है, मतलब फेलासिस का क्रिएशन होता है. मिडिल टर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हमारे जो फर्स्ट क्लास है वहां पर. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ हितभाष को हम देखेंगे. In Indian philosophy, there are many philosophers, specifically in Nyaya philosophy. They have mentioned different types of Hettabhash, like Gautam. Gautam classified all the inferential fallacies under 5 heads. For example, namely, Shabhabhicha Hettabhash, Viruddha Hettabhash, Prakaran Shama Hettabhash, Shadha Shama Hettabhash, and Kalatita or Badhita Hettabhash. Ganges, he is the founder of Nobunai philosophy. He classified all inferential fallacies under 5 heads. Abhyabhichar, Viruddha, Shatpatipaksha, Ashiddha, and Badhita. Annam Bhatta, the author of Tarkasangra, he classified all the inferential fallacies under 5 heads. Shabhabhichar, Viruddha,
सत्प्रतिपक्ष एंड असिद्ध एंड अबाधित। Vishwanath classified all the inferential fallacies under 5 heads. Vishwanath, the author of Siddhanta Muktavali और भाषा परिच्छेद। अनैकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित एंड कालात्म उदिष्ट। Bhasparga and Keshav Mishra are classified all the inferential fallacies under 5 heads. Asiddha, Viruddha, Anaikantik, Alayatya Pradishta, and Prakaran Shama. Kanath is the founder of Vaisheshika philosophy. Kanath are classified all the inferential fallacies under 3 heads. अपरिसिद्ध, विरुद्ध, संदिग्ध। Some keywords for हेत्वाभास। ये सभी कीवर्ड्स हमारा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कीवर्ड से ही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। जैसे कि असिद्ध एंड शब्द सम हेत्वाभास का कीवर्ड है और इसका मीनिंग है अनप्रूव मिडिल। एक्चुअली असिद्ध या साध्यसम हेत्वाभास is known as the fallacy of unproved middle. स्वव्यभिचारी जो fallacy है, this is known as the fallacy of irregular middle. 2024 philosophy पेपर में एक क्वेश्चन आया था, irregular middle का एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछा गया था। स्वव्यभिचार, the fallacy of irregular middle. And Shatpatipaksha, the middle term is contradicted by another middle term. Badhito, the non-inferentially contradicted middle. And Viruddha, contradictory middle. ये सभी कीवर्ड्स सभी हेत्वाभास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी। Now, I'm going to discuss स्वव्यभिचारी और अनैकांतिक हेत्वाभास। स्वव्यभिचारी और अनैकांतिक हेत्वाभास is the fallacy of irregular middle. There are 3 kinds, namely साधारण स्वव्यभिचारी हेत्वाभास, असाधारण स्वव्यभिचारी हेत्वाभास, अनुपसंहारी स्वव्यभिचारी हेत्वाभास। But on the basis of this heत्वाभास, there are 2 views about this fallacy or reason. Gautam calls it स्वव्यभिचार or अनैकांतिक, and Kanath calls it संदिग्ध. संदिग्ध means संदिग्ध is a doubtful or inconclusive reason. स्वव्यभिचार, first one, साधारण स्वव्यभिचार। मिडिल टर्म इज टू वाइड। यहाँ पर जो मिडिल टर्म व्यापक होता है, टू वाइड होता है। मिडिल टर्म प्रेजेंट इन बोथ द पक्ष एंड द विपक्ष। मतलब साधारण स्वव्यभिचारी हेत्वाभास कब होता है? तो जहां पर मिडिल टर्म सपक्ष में भी रहता है एंड विपक्ष में भी रहता है, पॉजिटिव क्षेत्र में भी रहता है एंड नेगेटिव क्षेत्र में भी रहता है, तब होता है साधारण स्वव्यभिचारी हेत्वाभास। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। हिल में फायर है, क्यों, कैसे पता चला मुझे ना? इट इज नोएबल। हिल जो है वो पक्ष है, फायर जो है वो साध्य है, मतलब हिल जो है वो माइनर है, फायर जो है मेजर है, एंड नोएबल वो है हेतु, मतलब मिडिल है। अब देखो जो नोएबल का कॉन्सेप्ट, नोएबल मीन्स ज्ञेय। ए वो जो
फायरी थिंग्स है वहां पर तो रहेगा, जैसे कि ओवन में, जैसे कि मेरा किचन में। लेकिन जो नॉन फायर थिंग्स है वहां पर भी रहेगा। जैसे कि मैं जान सकता हूं कि ये मेरा किचन है, ये ओवन है, ये मेरा हीटर है, इसको मैं जान सकता हूं। इसी तरह मैं ये भी जान सकता हूं कि ये रिवर है, ये नदी है, ये सी है, ये भी तो हम जान सकते हैं। सो नोएबल सिर्फ फायर थिंग्स में नहीं रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट नोएबल का सिर्फ फायर थिंग्स के लिए नहीं है, नॉन फायर थिंग्स के भी है। इसलिए मिडिल टर्म दोनों क्षेत्र में रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्षेत्र में। इसलिए ये इसको हम कहते हैं साधारण स्वाभाविक हेक्ताभास। ये हेक्ताभास जो रूल्स को वायलेट किया है वो रूल्स है कि मिडिल टर्म कभी भी नेगेटिव इंस्टेंस में नहीं रहेगा, विपक्ष असत्य नहीं होगा, और विपक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन ए वाला हेक्ताभास और रूल्स को वायलेट किया है। उसके बाद असाधारण हेक्ताभास, यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर जो मिडिल टर्म होता है टू नैरो, हियर द मिडिल टर्म इज टू नैरो। मिडिल टर्म बहुत ही नैरो होता है। क्यों? बिकॉज मिडिल टर्म प्रेजेंट ओनली द पक्ष, neither स्वपक्ष एंड नॉट इन द विपक्ष। मिडिल टर्म सिर्फ पक्ष में रहता है, ना तो सपक्ष में ना तो विपक्ष में। मतलब मिडिल टर्म सिर्फ माइनर टर्म में ही रहता है, उसका कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इंस्टेंस नहीं रहता है, कोई एग्जांपल नहीं रहता है। कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि एप्पल स्वीट है, क्योंकि एप्पल में क्या है? एप्पल है। एप्पल इज स्वीट बिकॉज देयर इज एप्पलनेस। सो एप्पलनेस जो है, एप्पल का एसेंस, वो तो जैकफ्रूट में नहीं रहेगा, वो तो पोटैटो में नहीं रहेगा, वो तो ऑनियन में तो नहीं रहेगा, वो सिर्फ एप्पल में ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपके एग्जाम में आता है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिएबल। शब्द नित्य शब्द तत्, साउंड इटर्नल है। क्यों? क्योंकि ये ऑडिएबल है। ये ऑडिएबल वाला जो कैरेक्टर, ये तो अदर्स कोई थिंग्स में नहीं रहता है, ये सिर्फ साउंड में ही रहता है। ये साउंड जो है पक्ष है, इटर्नल जो है शब्द है, मतलब मेजर, एंड ऑडिबल ये है हेतु, मतलब मिडिल। ये तो मिडिल सिर्फ साउंड में रहता है, ये ऑडिबल सिर्फ साउंड में, साउंड का ही कैरेक्टर से, ना तो ये कोई देखने का कैरेक्टर है, नहीं तो कोई जो वॉकिंग करने का कैरेक्टर है, ये और कोई थिंग्स का कैरेक्टर नहीं है। ऑडिबल सिर्फ साउंड का ही कैरेक्टर है। सो इस टाइप का जो हेक्ताभास से हम कहते हैं अनैकांतिक और असाधारण स्वाभाविक हेक्ताभास। उसके बाद है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी इज द थर्ड काइंड ऑफ स्वाभाविक और अनैकांतिक हेक्ताभास। The middle term is non-exclusive. Non-exclusive का मतलब middle term is all inclusive. यहां पर तो ना ही विपक्ष है ना ही कोई पक्ष है, सपक्ष और विपक्ष कोई भी पक्ष में नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया। और इसका कीवर्ड है ऑल। ये ऑल वाला जो कीवर्ड है, सब, एवरीथिंग। अनुपसंहारी को पहचान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ऑल, एवरीथिंग। सो ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। सो ये जो ऑल थिंग्स, सबको मैंने इंक्लूड कर दिया, ऑल ह्यूमन बीइंग मैंने बोल दिया। सो जब मैंने सबको बोल दिया, तो यहाँ पर और कोई भी चीज नहीं रहे। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल, मतलब यहाँ पर जो भी है, वो सोल हो या ह्यूमन हो या ट्री हो
या हाउस हो या बिल्डिंग हो, जो भी थिंग्स है जगत में या जहां पर भी, सभी नॉन इटर्नल है। सो यहाँ पर एंड नॉन इटर्नल का कोई डिफरेंस नहीं है, सबको इंक्लूड कर दिया। जब कोई हेप्टाबस में मिडिल टर्म क्या होता है ना, सबको इंक्लूड कर देता है, मतलब उसका जब कोई मिडिल टर्म का कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, नॉन एक्सक्लूसिव हो जाता है। माइनर टर्म जो वो सबको इंक्लूड कर देता है, ऑल इंक्लूसिव होता है। जब माइनर टर्म ऑल इंक्लूसिव होता है, तब जो हेप्टाबस होता है, थैलेसिस होता है, जिसे हम कहते हैं अनुपोषणधारी। सो ये 3 टाइप्स ऑफ हेप्टाबस आज के लिए ही है। एक तो है साधारण स्वयंविचार हेप्टाबस, जहां पर हम देखेंगे कि मिडिल टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव में है, दोनों थिंग्स में ही है। असाधारण स्वयंविचार हेप्टाबस, जहां पर हम देखेंगे कि उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ उसका पक्ष ही है, मतलब वो माइनर नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने बोला ऑडिबल, ऑडिबल सिर्फ साउंड का ही कैरेक्टर है। और लास्ट वन अनुपोषणधारी, जहां पर हम देखेंगे कि माइनर टर्म के साथ जुड़ा हुआ है एवरीथिंग, ऑल थिंग्स, ये सभी टर्म अगर जुड़ा हुआ है तो होगा अनुपोषणधारी, क्योंकि मिडिल टर्म का कोई और क्षेत्र भी नहीं रहेगा, सब कुछ इंक्लूड कर दिया, मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव हो जाएगा। सो यही है आज के क्लास के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।